الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اسی طریقے سے شاندار طریقے سے چلتا رہا جہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ دونوں کی طبیعتوں میں تھوڑا فرق تھا۔ جہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت مزاج تھے، وہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی نے نرمی رکھی تھی، حیا رکھی تھی۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی اور آپ کا گھٹنا کھلا ہوا تھا۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تب بھی آپ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو کپڑے سے جو ہے ڈھانپ دیا، چھپا دیا، پردہ کر دیا اس کا۔ اور جب بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں، حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت تھی اور ان کی یہ خاص صفت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ان کے اندر بڑی سی جو ہے بہت کافی مقدار میں رکھی تھی۔ ان کی یہ صفت تھی کہ نرم طبیعت تھے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو ملی ہوئی تھی۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ جیسے جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جہاں جیسے خلافت چل رہی تھی، اسی انداز سے، اسی شان و شوکت کے ساتھ اور فتوحات کے سلسلے کے ساتھ یہ خلافت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی چلتی رہی۔ بڑا شاندار دور تھا ان کا۔ عام طریقے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، ان کے شاندار دور، اور جو آخر میں فتنے ہوئے صرف وہی یاد رکھتے ہیں۔ تو صرف فتنوں کو مت سمجھ میں ذہن میں رکھیے گا، اسی لیے میں آپ کو شروع سے یاد دلایا یہ پہلے فتنوں کا ذکر کرنے سے پہلے کہ یہ فتنے تو آخر میں۔ اب جب یہ جو ہے ان کی خلافت کا جو آخری دور ہے اور جس کے آخر میں امت میں بڑا فتنہ، جس فتنے کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جو فتنہ جڑا ہوا ہے، جس فتنے کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس فتنے کا ذکر کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ہیں، آپ نوٹ کر لیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام کے دور میں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہوئے ہیں، جو بھی فتنے ہوئے ہیں، یا بعد کے دور میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد جو جنگ صفین اور جنگ جمل کی شکل میں امت میں خود صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جو سب کی سب فتنے ہی تھے، ایک طرح سے جو ہے سب کی سب فتنے ہیں۔ ان سب کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، ایک بنیادی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو یہ ہے، ہمارا منہج اور طریقہ یہ ہے، ہمارا میتھڈ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے درمیان اٹھنے والے ان فتنوں کا ذکر نہ کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے، ان کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے۔ صحابہ کرام کے درمیان اگر کچھ چیزیں ہوئی ہیں تو ان کا ذکر ہی کرنا جو ہے ہمارے لیے غیر مناسب۔ ہمیں اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے اس پر کلام کرنے کے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ ذکر یہاں پہ کرنا ہے۔ یہی آپ سوچ رہے ہوں گے، یہی مجھے آپ کو اصل یہی پوائنٹ بتانا ہے، آپ کے سامنے واضح کرنا ہے،
कि असल ये है मेरे भाई, हमारा तरीका भी यही है। अगर लोग खामोश होते और इस सिलसिले में कोई गलत बात लोगों की कलम और जबान से न निकली होती तो हम बिल्कुल खामोशी इख्तियार करते इसके बारे में, और आप तमाम नौजवानों से और आप तमाम खवातीन से यही कहते कि सहाबा के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए, और उससे जो है अपने आप को जो है उससे अपनी जबान को उस पर कलाम करने से रोकिए, या अपने कान को उसके बारे में कोई बात सुनने से रोकिए। कोई भी जो है बात हमारे कान में इसके बारे में नहीं पड़नी चाहिए, यही असल है। लेकिन अब आज का दौर तो आप जानते हैं इंटरनेट का दौर है। आज का दौर ऐसा है कि अब वो बातें जो किसी जमाने में किताबों में थी, आज हो गया है, ऐसा मामला हो गया है कि अब ये बातें व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे जो है जराए से, वसाइल से क्या क्या लोगों के सामने ये बातें पेश की जाती हैं, आती रहती हैं। हाँ, फला मौके पर ये हुआ, फला ने इनके साथ ये किया, फला ने उनके साथ ये किया। और जो ये बातें पेश की जाती हैं, कहाँ से ली जाती हैं? अक्सर जो है शीई तारीख से लेकर के हमारे दरमियान पेश की जाती है, गलत तरीके से पेश कर दी जाती है। उसकी जो सही बात है वो बात जो है नहीं पेश की जाती है। ये खास तरीके से आज तकरीबन जो है 100 साल से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, और आज के दौर में और भी ज़्यादा वो चीज़ इसलिए हो गई है कि अब सिर्फ प्रिंटिंग का मसला नहीं रह गया, किताबें छापने का मसला नहीं रह गया। अब तो ये है कि व्हाट्सएप वगैरह जो मुख्तलिफ जो है जो समाजी सोसाइटी, जो समाजी जो है वेबसाइटें हैं, सोशल जो है वेबसाइट्स हैं जो है, उसकी जो है ज़रिए से ये चीज़ें जो है पूरे ग्रुप में डाल दी जाती हैं, और न चाहते हुए भी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। इसलिए अब ऐसे मौके पर बेहतर होता है कि पहले से इल्म होना चाहिए इसको, और इसीलिए इसको ज़िक्र कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ताकि आपको इसका सही इल्म हो सके, सही जानकारी हो सके। आपके सामने कोई भी गलत बात आए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, या इसके बाद का जो दौर है जंग जमल और जंग सिफ़ीन के ताल्लुक से, सहाबा के ताल्लुक से कोई भी गलत बात कोई ज़िक्र करता है, तो आप जाने कि ये कहने वाला ज़रूर या तो शिया होगा, या शिई किताब से ही कोई बात लिख करके ले करके फैलाई गई होगी, तो इसने भी जो है वो कहना शुरू कर दिया है। ये पहली, ये बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको इस फितने की शुरुआत से पहले जो है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये कायदा है, इसको ज़हन में रखिएगा आप जो। तो हम यहाँ क्यों बयान करते हैं इसको, क्यों आपके सामने बयान कर रहे हैं? इसलिए बयान कर रहे हैं कि आप इसको समझ सकें, और अच्छी तरह से आप इसको जान जाएंगे, तो गलत बातें अगर किसी की तरफ से आएंगी तो आप खुद उसे सख्ती से रद्द कर देंगे। एक बहुत मशहूर जो है अरबी ज़बान अरबी ज़बान का राइटर जिसे ताहा हुसैन कहा जाता है, और ये मिस्र का रहने वाला शख्स, जिसने जाकर के पेरिस में इसको बाकायदा जो है स्कॉलरशिप पे वहाँ बुला करके इसको तालीम दी गई। और उन लोगों की कोशिश यही होती है कि अच्छे ज़हन के बाज़ लोगों को मुंतखब करते हैं कि इनको ला करके हम खुद तालीम देंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ और जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनको अपनी तरफ से उनका ज़हन जो है बनाने के लिए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ये सोचे, और उसके लिए वो पूरी कोशिश ये करते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर उनके लिए, ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए जो है तैयार करें वहाँ पर, जिससे ये मुतासिर होकर के उनकी बातें सुने और वही बातें फिर जाकर के अपने लोगों में वो बयान करें। तो ये काम तहा हुसैन ने भी किया है मेरे भाई, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, और उनके दौर में पेश आने वाले इस फितने के ताल्लुक से बड़ी गलत बातें अरबी ज़बान में उसने लिखी हैं। और यही बातें फिर जो है, अब एक तो होता है कि जब कोई गैर मुस्लिम लिखता है तो आप कह सकते हैं, कोई शिया लिखता है तो आप कह सकते हैं भाई ये तो गैर शिया है, ये गैर मुस्लिम है, ये फला है, इसकी बात का क्या एतबार है। लेकिन जब ऐसे लोग भी जो पहले से ना गैर मुस्लिम है, मुसलमानों में ही पले बड़े हैं, मुस्लिम नाम रखते हैं और शिया भी नहीं है,
अगर ऐसा कोई आदमी कोई बात कहता है तो फिर लोग क्या कहेंगे, हाँ नहीं नहीं ये तो फला आदमी भी कह रहा है ना, मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं की बातें लेकर के बाज लोग जो अरबी जानते हैं उसको तर्जमा करके उर्दू में भी पेश कर देते, और जो इंग्लिश जानते होंगे इंग्लिश में पेश कर देंगे। तब लोगों को परेशानी, पढ़ने वालों को परेशानी हो जाती है। और ये जानना मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। आज के इस दौर में, पहले भी इसकी अहमियत थी इल्म की, और आज के इस दौर में खास तरीके से इन फितनों के बारे में सही इल्म रखना बहुत जरूरी है। और उसी सही इल्म को आपके सामने पेश करने के लिए ये दर्स भी आपके सामने पेश किया जा रहा है। यहाँ ये बात भी नोट कर लीजिएगा कि हमारी तारीख की एक बड़ी मशहूर किताब है, तारीख तबरी कहते हैं उसको। असल जो है तारीख किताब का पूरा नाम जो है दूसरा है, लेकिन चूंकि वो तबरी, वो जो है किताब के लिखने वाले आथर जो है ये तबरी हैं, तो उसी के लिहाज से उसको तारीख तबरी कहा जाता है। ये तारीख तबरी, तबरी चूंकि ये पहले के जो है आथर में से हैं, और पहले जमाने के, बाद में जो है इब्न कसीर काफी बाद में आएंगे, लेकिन ये इमाम तबरी जो है ना बहुत पहले के हैं। और इन्होंने किताब जो लिखी है तारीख, उनकी तारीख की किताबों में हर तरह की रिवायतें मौजूद, ये बात नोट कीजिएगा। उनकी तारीख की किताब में हर तरह की रिवायतें मौजूद है। क्योंकि बाद में कोई ये कहे कि नहीं भाई तबरी में है, और तबरी कोई शी तो नहीं है, ये आप लोग जो है अपने आप मानते हैं आप इनको तबरी को, और जो है तारीख तबरी में ये बात लिखी हुई है, ये बात भी कोई आपके सामने पेश कर सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये भी आपके सामने क्लियर कर दूं कि इमाम तबरी का मेथड क्या था अपनी किताब तारीख तबरी में, उनका मेथड क्या था। उनका मेथड मेरे भाइयों, उनका तरीका ये था कि जितनी भी बातें इसके ताल्लुक से कही गई हैं, जितनी भी रिवायतें उनको मिली हैं, सबको जिक्र कर देंगे। उनका तरीका किताब में ये नहीं था, उन्होंने ये नहीं लिखा शुरू में जो मुकदमा लिखा जाता है, ये नहीं लिखा कि मैं सिर्फ सही बात पेश करूंगा इस किताब में, और जो ज़ईफ और गलत रिवायतें हैं, मौजू और मनगढ़ंत रिवायतें हैं, उसको नहीं जिक्र करूंगा। ये नहीं उनका तरीका था। उनका तरीका क्या था, जो भी कहा गया है वो सब। और उनका तरीका ये था कि उन्होंने सनद के साथ लिखा है उसको, सनद के साथ, यानी ये बात किसने कही है, कब कही है, कहाँ से कही है, किसने उसको, ये पूरा जो है ना, पूरी जो उसकी सनद होती है, पूरी सनद को भी जिक्र किया है। और उस जमाने में अगर इस तरह से किसी बात को पेश कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होता था कि गोया कि वो ये कह रहा है कि आप खुद समझ सकते हैं मन गलत है, क्योंकि इसकी सनद में एक फला रावी है जो कि ऐसा है। उस जमाने में ये इल्म था, आज तो नहीं है किसी के पास। शाज़ नादिर ही लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जो है जो इसका जो है इल्म रखते हैं। तो सनद के अंदर खुद जो है रावी ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि ये मनगढ़ंत रिवायत है। अबू मखनफ जो है बहुत मशहूर एक शी राफिजी जो है, और इस्लाम दुश्मन अनासिर में से समझे ये भी एक शख्स था, उसकी सनद से रिवायतें भी तारीख तबरी में मौजूद है। और भी मैंने एक सिर्फ मिसाल पेश की अबू मखनफ की। अबू मखनफ खालिद शी जो है शख्स था, और इसकी रिवायतें अहले सुन्नत वल जमात कबूल करते हैं। लेकिन इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो रिवायतें भी जिक्र की हैं, क्योंकि उनका मकसद था सारी रिवायतों को इकट्ठा करना। उनका मकसद ये नहीं था यहाँ पर कि कौन सही है कौन गलत है, सिर्फ सही की रोशनी में ही तारीख को मुरतब करना, ये उनका मकसद नहीं था, उनका मेथड नहीं था। बल्कि उनका मेथड था पूरी तारीख को जमा कर दिया जाए, जो भी जो है रिवायतें, तारीख की पूरी रिवायतों को जमा कर दिया जाए, चाहे वो सही है गलत है झूठी है, उसको जो है जमा कर दिया जाए, और सबकी सनद जो है पेश कर दिया जाए। सनद से पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो ये जो है एक बात इसको भी नोट कीजिएगा। तो तबरी की जो है तारीख में भी इस तरह की रिवायतें मौजूद हैं।
इनकार नहीं है इसका, मौजूद है ये, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होता है कि उसकी सनद क्या है। ये ऐसे ही है जैसे हदीस की बाज़ किताबों में मौजू हदीसें मौजूद हैं, लेकिन उन मुहद्दिसीन ने सनद के साथ उसको पेश किया है, और सनद से ये पता चल जाता है कि ये मनगढ़ंत हदीस है, ये मनगढ़ंत रिवायत है। तीसरी बात जो है, जो हमको खास तरीके से इसमें नोट करना है, वो ये है कि ये भी याद रखिएगा कि ये जो भी रिवायतें पेश की गई है, जो भी रिवायतें, जो ये तारीख मुरतब की गई है, ये तारीख सब की सब बनी उमैया के दौर के बाद लिखी गई है। बनु उमैया का दौर, बनु उमैया का दौर कौन सा है? जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो उसके बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत रही, वो भी शहीद हो गए हिजरत के 40वें साल। फिर हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 महीने के बाद उन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैअत कर दी, और फिर जो है पूरी उम्मत जो है एक अमीर के मातहत हो गई थी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो यहाँ से बनु उमैया का दौर शुरू होता है हिजरत के 40वें साल से, और ये चलता है। इस पूरे दौर में तारीख की तदवीन का काम नहीं हुआ। कुछ जो है रिवायतें हैं जो हदीस की किताबों में मौजूद है उसकी सनद के साथ, लेकिन बाकायदा तारीख की तदवीन का काम नहीं। और ये चीजें इनका दौर गुजरने के बाद जो है ये काम हुआ सब, जिसकी वजह से पूरा मौका मिला लोगों को कि बनु उमैया के खिलाफ खास तरीके से मनगढ़ंत और झूठी रिवायतें पेश की, उनको ज्यादा मौका मिला इसका। तो तारीख के ताल्लुक से ये बात भी जो है नोट रखिएगा कि ये तारीखी जो रिवायतें हैं, किताबें हैं, ये सब की सब बनु उमैया का दौर गुजरने के बाद ही ये मुरतब की गई है। उस दौर में कोई चीज नहीं की गई। अगर उस दौर में ये चीजें मुरतब होती तो शायद ये अंदाज दूसरा होता, अलग चीज होती। तो बाद में शियों का इस पर काफी जो है असर रहा है, काफी उनका गलबा रहा है। तो तारीख को इसलिए सही तरीके से जानना और सारी सनदों को खंगालना, और सनदों के अंदर से तो उसके जो है कौन सी रिवायत सही कौन सी ज़ईफ, ये कोशिश करना, ये मेहनत करना, ये बाज जो है अहले इल्म ने इस दौर में किया है। जैसे बाज लोगों ने मुस्तशक़ीन से मुतासिर होकर के गलत बातें लिखी हैं, किताबें लिखी, तो हमारे बाज अहले इल्म ने इस सिलसिले में रिवायतों की छानबीन करके सही रिवायात की रोशनी में फितनों का जो ये दौर गुजरा, उस दौर में सही बात क्या थी उसको भी पेश किया है। एक बहुत मशहूर मुहक्किक है, ये जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के किस्म सुन्ना जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हदीस, वहाँ पर ये जो है रह चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। उन्होंने जो है इस सिलसिले में जो रिवायतें हैं उसकी तहकीक का काम किया है, और अल खिलाफतुर राशिदा नाम से उनकी किताब है अरबी में, जिसमें उन्होंने खास तरीके से वो रिवायतें जो कि साबित हैं, सही हैं, उन्हीं रिवायतों को उन्होंने पेश किया है। मैं आपको याद दिलाने के लिए कि ये काम भी किया, और भी बाज़ दूसरे लोगों ने तहकीक का ये काम किया है, उसमें से एक ये भी। तो हम जो बातें आपके सामने पेश करना चाहेंगे ना, वो सारी रिवायतों की तहकीक के बाद जो सही शक्ल है, वो सही शक्ल आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। चौथी बात ये है इस सिलसिले की कि ये भी नोट रखिएगा कि तारीख सिर्फ एक तारीख होती है। कोई बात जो कही गई है वो एक बात होती है, और वो बातें जो कुरान में हैं, जो हदीस में हैं, वो बातें हमारे लिए क्या है? प्रूफ है। तारीख हमारे लिए उस प्रूफ के दर्जे में नहीं आती है। नोट कीजिएगा इसको। कुरान और हदीस हमारे सामने ये दो क्या है? ऐसे प्रूफ हैं हमारे पास कि हम किसी भी तारीखी रिवायत को
इसी की रोशनी में देखना चाहिए और इसी की रोशनी में उसे कबूल करना चाहिए। और अगर कोई चीज तारीख के अंदर ऐसी जिक्र होती है जो किताब और सुन्नत की इन बातों से बिल्कुल अलग होती है, उसके खिलाफ जाती है, तो हम किताब और सुन्नत में जो बात जिक्र है उसे लेंगे और जो इन तारीखी रिवायात में है उसे एक तरफ रख देंगे। इमाम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, ये मैं जो पेश कर रहा हूँ जिनके ताल्लुक से अभी ये बनु अब्दुल अजीज, मैंने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज मशहूर खलीफा गुजरे हैं बनु उमैया के दौर के। बनु उमैया का दौर ये खिलाफत राशिदा के बाद आएगा, बनु उमैया का दौर, तो बातें आएंगी इंशाअल्लाह। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे उनके दौर में किसी ने इस सिलसिले में बात शुरू की तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है, मैं वो बात आपके सामने कोट करना चाहूंगा। उन्होंने ये जिक्र कहा कि एक ऐसी कौम, अरबी में उन्होंने बात कही, मैं उर्दू में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि ऐसी कौम जिनके खून से अल्लाह ताला ने मेरे हाथ को महफूज रखा। यानी मैं उस दौर में नहीं था जब सहाबा के दरमियान आपस में जो है फितनों की वजह से लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, तो मैं उस दौर में नहीं था। तो अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा, उसमें शिरकत मैंने नहीं की, मैं नहीं शरीक रहा हूँ। फितनों में तो बड़ा मसला रहता है फितनों के दौर में। कहा मुझे अल्लाह ताला ने मेरे हाथ को जब उनके खून से महफूज रखा है तो मैं अपनी जबान को क्यों महफूज नहीं रखूंगा उनके बारे में बात करने से। अब मुझे जबान को भी महफूज रखना है, उनके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात मैं अपनी जबान से नहीं जिक्र करूंगा। यही होता है एक मोमिन के ईमान का तकाज़ा, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, कि वो लोग जो कि उनके बाद आए, अगलों के बाद पिछले लोग, वो अपने अगले गुजरे हुए जो लोग हैं ना, पिछले जो गुजर चुके हैं लोग, उनके बारे में दुआएं करते हैं कि अल्लाह है हमारे रब तू माफ कर दे उनको। और क्या करते हैं, और कहते हैं कि वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना, कि ऐ हमारे रब तो हमारे दिलों में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए किसी तरह का हिक़्द, किसी तरह का कीना और किसी भी तरह की कोई दुश्मनी और नफरत की बात हमारे दिल में आए अल्लाह, तो उनके ताल्लुक से मत करना, जो है हमारे दिल में ऐसी किसी चीज को जगह ना मिले, ऐ हमारे रब। यही हमारे ईमान का तकाज़ा। तो हम इस जो है फितने को जिक्र करने से पहले ये चंद बुनियादी बातें आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा कि सहाबा किराम सबसे पहले नंबर पर इसमें आते हैं कि हम सब जो है सारे सहाबा से मोहब्बत रखते हैं और उनके ताल्लुक से अपने रब से ये दुआ करते हैं कि हमारे दिल में किसी भी एक सहाबी के ताल्लुक से भी किसी भी तरह की कोई नफरत की बात और दुश्मनी की कोई बात और जो है वो अखलाक से गिरी हुई कोई बात या कोई भी गलत चीज़ जो है हमारी ज़बान से ना निकले। हम जो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, हम जो है इसके लिए दुआ करते हैं और ये दुआ हमको कुरान में सिखाई। छठी बात ये फितनों के बारे में याद रखिएगा, उसूली बात है ये। फितने के बारे में ये कहा गया है अरबी ज़बान में कि फितने जब आता है फितना, तो ये बिल्कुल इसकी मिसाल समझो एक नौजवान खूबसूरत औरत की है। जब फितना शुरू होता है तो ये नौजवान औरत की समझिए कि जो है फितना पर्दाजी और अपने हुस्न की तरफ लोगों को जो दावत देती है और लोग उसकी तरफ माइल हो जाते हैं,
सब उसमें चले जाते हैं। चंद ही लोग जिनको अल्लाह ताला महफूज रखता है, वही लोग महफूज रह पाते हैं। तो फितना जब भी आता है तो इस शक्ल में आता है जैसे कोई खूबसूरत जो है नौजवान हसीन और जमील औरत हो। और जब फितना गुजर जाता है वापस जाता है, तो बिल्कुल बूढ़ी औरत समझिए उसे। हर कोई उससे एराज तू करता है, अरे कहाँ फंस गया था मैं। लेकिन जब शुरू होता है तो आदमी नहीं समझ पाता है और फितने की जद में आ जाता है, फितने में मुब्तला हो जाता है। और अपने आप को समझना है, फितनों के वक्त में अपनी जबान को कैसे महफूज रखना है और अपने आप को कैसे महफूज रखना है, इस चीज को हमें समझना है। मेरे बड़ी अहम चीज है ये। शुरू में ही जानना और समझना ये अहम होता है। बाद में जब सब चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए तो हर कोई जान जाता है, हर कोई फितने से भागना चाहता है। वो बिल्कुल बूढ़ी औरत की, एक बूढ़ी औरत आपको बुलाएगा तो क्या आप बुलाएगी तो क्या आप जाओगे उसके पीछे पीछे? वो तो तौबा जो है करके थू थू करके पहले ही आप जो है दूसरा रास्ता ले लोगे। ये कब होता है? तो ये फितना जब खत्म होता है ना, तो उसका जो आखिरी दौर होता है, खात्मे का वक्त होता है, वो बिल्कुल जो है वो बूढ़ी औरत की मानंद हो जाता है। और जब शुरू होता है तो बिल्कुल जवान औरत, खूबसूरत औरत की मानंद ये फितने होते हैं। ये एक मिसाल दिया है समझने के लिए। आज के दौर में भी फितनों की कमी नहीं है, मुख्तलिफ हालात आते हैं। हमारे उलमा देखें तो ऐसे ही जो खास तरीके से जो जिनके पास जो है ज़्यादा इल्म नहीं होता है, तजर्बा नहीं होता है, सब बात करना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। अरे कम से कम अल्लाह के बंदो अपनी जबान को खामोश तो करो, कम से कम तो ये कर सकते थे, तो नहीं करते। वो फितने में मुब्तला हो जाते हैं। बाद में चीज बड़ी क्लियर हो जाती है, वाजे हो जाती है कि चीज गलत थी, वाजे हो जाता है कि गलत थी। तो जब वो चीज शुरू होती है ना, उसी शुरू के वक्त में असल में अपने आप को बचाना होता है, फितरों से अपने आप को बचाना होता है। और वही जो है अहम वक्त होता है। और उसी वक्त में लोग अपने आप को आम तरीके से बचा नहीं पाते। ये सिर्फ उसी जमाने की बात नहीं है, मैंने आपसे कहा अभी भी ये चीजें मौजूद हैं और अभी भी हमारे ये गलतियां होती हैं। और ये गलतियां बड़ी कसरत से उलमा करते हैं और उलमा ही लोगों को बांट देते हैं, दो ग्रुपों में लोग तकसीम हो जाते हैं, कोई इधर कोई उधर जो है, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, और लोग जो है उसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सही मानने में इल्म नहीं होता। अगर वाकई इल्म होता तो अपनी जबान को खामोश करते थे। फितने के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बैठा है वो खड़े होने से बेहतर है, खड़े होने वाले से, और जो सोया है वो बैठने वाले से बेहतर है। अपने आप को इस तरीके से खामोश करना पड़ता है फितने के दौर में, अपनी जबान को लगाम देना होता है। लोगों को खामखा में जो है कि नहीं अपना जाहिर करना कि मुझे कुछ आता है, मुझे पता है, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ऐसा कुछ सोच करके जो लोग बोलना शुरू कर देते हैं इस तरह के हालात में, याद रखिए वो गलत करते हैं। और हमने बहुत देखा ये फितना कोरोना के दौर में, बहुत देखा। अब आजकल जो आप समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क से करीब के एक मुल्क में जो हालत चल रही है, जो है जंग का जो माहौल चल रहा है, उसको लेकर के कितने लोग जो है कैसी कैसी बातें कर देते हैं, कितने लोग जेल में जाकर के पड़े हुए हैं सिर्फ इसी वजह से। अरे भाई अपनी जबान को खामोश नहीं कर सकते, आप किसी वक्त को समझ नहीं पाते हैं कि क्या वक्त है, कैसा वक्त है, क्या हमको बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इतनी जो है अकल नहीं दी अल्लाह ताला ने, तो फिर क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? ये चीजें हैं, ये उसूल और ज़ाब्ते हैं मेरे भाइयों और बहनों, इसको जो है इसका आपको ख्याल करना चाहिए कभी भी जो है। तो मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की कि ये उसूल और ज़ाब्ता पेश किया है। इसके बाद ही हम जो है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के आखिर में ये फितना कैसे शुरू होता है और कहाँ-कहाँ से ये फितने, उसके असबाब क्या होते हैं, और उन असबाब का ज़िक्र करते हुए इंशाअल्लाह हम फितने की जड़ तक जो है आपके सामने वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह और बातें आपके सामने ज़िक्र करेंगे।
آج کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد عربی کی کلاس ہوگی، جو شرکت کرنا چاہیں شرکت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب